Good morning to all of you. Okay, here we discuss or solve the second problem of sheet number 3. Okay, let's see the question. The question is identify the curve when eccentricity equal to 1 and draw a curve if the distance of its focus from its directrix is 50 mm. Okay, also draw tangent and normal to the curve at suitable point on the curve. Okay, here we are solving this problem by using the focus and directrix method. Okay, we use focus and directrix method where in the question eccentricity and distance between focus and directrix is given. Okay, so here eccentricity equal to 1. Okay, so here in the question given that identify the curve. ओके हमें कर्व को आइडेंटिफाई करना है. ओके और उसके बाद उसको सॉल्व करना मींस वी आल्सो राइट द नेम ऑफ द कर्व. ओके पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कर्व कौन सा है. ओके हियर इसेंट्रिसिटी इज गिवन. ओके फर्स्ट आई जस्ट राइट डाउन द डेटा. ओके हियर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, e equal to 1. Okay, and distance between focus and directrix, okay, equal to 50 mm. Okay, so let's start to solve the problem. Okay, here I'm just write down the data. Eccentricity equal to 1. Okay, and focus distance between focus and directrix is 50 mm. Okay, we use this method focus and directrix when in the question eccentricity is given and distance between focus and directrix is given. Okay, as I told you, we use this method. Okay, if in the question, okay, distance of axis length, okay, and base length is given. Okay, in that case we are going for the rectangle method or triangular tangent method. Okay, here first let's decide which the type of the curve. Okay, here eccentricity is given, eccentricity equal to 1. Okay, we classified the curve on basis of eccentricity. Okay, in conical section, if eccentricity less than 1, then it's a ellipse. Okay, eccentricity greater than 1, then it's a hyperbola. Okay, and eccentricity equal to 1, okay, means it's a parabola. Okay, so it is the problem of parabola curve. Okay, in conical section. Okay, if here the question distance between focus and directrix is given. Okay, as I told you, if in the question base length and axis length is given, okay, then we are going for the rectangle method or tangent method. Okay, but here distance between focus and directrix is given and eccentricity is given. Okay, so we solve this problem by using focus and directrix method. Okay, अगर इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला किसी का भी प्रॉब्लम हो, ओके, अगर आपको क्वेश्चन में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया हो और उसके साथ साथ इसेंट्रिसिटी दी गई हो, ओके, तो आपको वो प्रॉब्लम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो हियर फर्स्ट लेट्स आई ड्रॉ one directrix. Okay, I just draw the thing which is given in the question. Okay, question हमें a directrix और focus के बीच का distance दिया गया है. Okay, first I draw directrix line. Okay, this directrix line. Okay, now distance between focus and directrix f and d. Okay, here I take point D. Okay, distance between focus and directrix is 50 mm. Okay, so I take point D at here, and from here on this line, okay, I measure 50 mm. Okay, and mark point F at here. Okay, mark point F at here. Okay, this thing is given in the question. Distance between F and D is given. Okay, this distance is 50 mm. Okay, now, okay, eccentricity equal to 1. Okay, in parabola eccentricity equal to 1. Okay, first let's see what is eccentricity. Okay, eccentricity, okay, E equal to, okay, if I take any point, okay, I take any point V, okay, then eccentricity is the distance of that point with the focus point and distance of that point with directrix. ओके, इसेंट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि फोकस कोई पॉइंट अगर मैं V ले लूं, ओके, कोई पॉइंट V मैंने लिया है, ओके, तो उसका फोकस से डिस्टेंस मींस इस पॉइंट से डिस्टेंस, ओके, और
उस पॉइंट V का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस, ओके, तो वो जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे हम, eccentricity. Okay, we already learned about the definition of eccentricity. Okay, we discussed about this when we solved the problem by using FND method. Okay, so यहाँ VF by VD, okay, यह eccentricity की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दी गई है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या होता है, VF by VD इक्वल टू 1, इट मीन्स VF इक्वल टू VD। ओके, ये V पॉइंट का डिस्टेंस F से जितना है उतना ही डिस्टेंस किससे है, D से। इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं कोई एक पॉइंट को जिसका F से भी डिस्टेंस सेम हो और D से भी डिस्टेंस सेम हो, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो उसके सेंटर में होगा, मिडल में होगा, तभी डिस्टेंस सेम होगा ना। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 50 mm, सो आई जस्ट टेक दी मिडल पॉइंट। ओके, 50 ना 50 का हाफ कितना होगा 25। ओके, सो from here I'm just measure the distance 25, 25, okay, and mark one point at here. Okay, I give the name V to this point. Okay, so V is a vertex point, F is the focus of the parabola, and D is a point on the directrix. Okay, तो इतनी चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है। Okay, now, okay, first I mark point V at here. Now, okay, I measure this distance VF, this distance VF, okay, and draw one perpendicular line from V, okay, perpendicular line from V point, okay, और उसका distance, okay, here I am take any point X, okay, तो ये Vx का distance कितना है VF, ये VF का जितना distance है उतना ही Vx का distance लेके मैंने ये perpendicular line draw की, perpendicular line, okay, here VF equal to Vx, ओके, ये दोनों डिस्टेंस कितने हैं सेम है। ओके, नाउ आई जस्ट ड्रॉ वन लाइन विच पास फ्रॉम पॉइंट D एंड पॉइंट X। ओके, उसी तरीके से इधर भी नीचे भी ये जो Vx है उतना ही डिस्टेंस में नीचे भी लूंगा, ये सेम डिस्टेंस VF जितना ही। ओके, और उसको भी क्या नाम दूंगा X ही नाम दूंगा, यहाँ पे भी X। ओके, ये मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे ही, क्योंकि दोनों सिमिलर होगा, ओके, सिमेट्रिकल शेप, इसलिए ऊपर जैसा करेंगे वैसे ही नीचे ही करेंगे। तो सेम D और X में से पास हो वैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे हो गए। ओके, हमने क्या किया VF जितना डिस्टेंस लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ही है, फिर ये जो X पॉइंट है ये और D पॉइंट में से पास हो वैसे दो लाइन ड्रॉ की है। ओके, नाउ, ओके, आई एम टेकिंग रैंडम पॉइंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5। okay, it's not compulsory that we take all the points at equal distance। okay, equal distance पे लो वो compulsory नहीं है। okay, मैंने यहाँ पे random point ली है। okay, आप सिंपल यहाँ पे स्केल रख के 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। okay, ये जरूरी नहीं है कि आपका सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। okay, I'm randomly take 4 point। okay, you take 4 5 6, it's depend on you। okay, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, 5 पॉइंट लिए हैं, सॉरी। ओके, नाउ आई एम जस्ट गिव द नेम 1 2 3 4 और 5। F को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये मेरा फोकस पॉइंट है F। ओके, नाउ, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट आई ड्रॉ one straight vertical line which intersect at here, this inclined line at here। okay, here I give the name 1 dash। similarly from 2 point I draw one vertical line which intersect at here। okay, here I give name 2 dash। okay, similarly from 3 point I draw one vertical line। okay, so here I get 3 dash। okay, similarly from 4 point I get here 4 dash। okay, वैसे ही 5 point में से straight vertical line which intersect this inclined line at here, so here I give name 5 dash। okay, now, okay, now I'm going to draw the different arc। okay,
यहाँ पे ये पॉइंट फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। ओके, ये जो मेथड है इसमें हमने नंबर कहाँ से स्टार्ट किया है, वी के बाद से स्टार्ट किया है। ओके, याद करो आर्क ऑफ सर्कल मेथड, वहां पे मैंने ये आपको स्टार करके लिखवाया था कि उसमें हम एफ पॉइंट के बाद में नंबर स्टार्ट करते हैं। ओके, वी ऑल्सो टेक रैंडम पॉइंट इन दैट केस, बट वी स्टार्टिंग नंबर आफ्टर एफ पॉइंट। ओके, एफ पॉइंट के बाद हम नंबर देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इस मेथड में फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स में हम वी वर्टेक्स पॉइंट के बाद में नंबर देना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, चलो अब क्या करना है, अब हम डिफरेंट आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डिफरेंट आर्क एंड वी नो दैट फॉर ड्रॉइंग द आर्क वी नीड टू डेटा। ओके, वन सेंटर एंड सेकंड वन इज रेडियस। ओके, सो make star at here and write down we always use f as a center. ओके, जितने भी आर्क ड्रॉ करनी है उस सभी के लिए मैं जो मेरा f पॉइंट है, ओके, उसको ही क्या लूंगा, सेंटर लूंगा। ओके, तो सेंटर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया क्योंकि सभी केस में मुझे ये f पॉइंट है उसको ही सेंटर लेना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस। ओके, फर्स्ट आई टेक वन डैश एज अ रेडियस। ये जो है इतना डिस्टेंस, वन डैश, इतना डिस्टेंस को रेडियस लेना है। ओके, सेंटर इज f। ओके, वन डैश रेडियस and f center. I draw arc. Okay, I extend this line to bottom also, क्योंकि नीचे की ओर भी हमें ड्रॉ करना है ना, इसलिए नीचे की ओर ये लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे ऐसे। चलो, ओके, डिस्टेंस कितना लेना है, वन डैश, और सेंटर किसको लेना है, f को। ओके, और हमें आर्क ड्रॉ करनी है किस पे, ये वन डैश लाइन पे। समझ में आ रहा है, हमने वन डैश जितनी रेडियस ली है, सेंटर किसको लिया है, f को, और आर्क कहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे ये जो वन डैश वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ओके, ये जो लाइन है वहां पे मुझे कट करना है, क्योंकि वन डैश रेडियस है, इसीलिए वन डैश लाइन को ही कट करना है। ओके, सो हियर आई गेट माय फर्स्ट पॉइंट P1, सिमिलरली एट हियर P1। ओके, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे P1 यूज किया है दोनों तरफ। नाउ आई एम टेक द सेकंड रेडियस इज टू डैश को रेडियस लेना है, मींस इतनी रेडियस लेनी है, एंड सेंटर इज फिक्स, वी ऑलवेज टेक f एज अ सेंटर। ओके, f को सेंटर लेना है, टू डैश को रेडियस लेना है, तो कट किस लाइन को करना है, ये टू डैश वाली लाइन को ही कट करना है। ओके, so I get one point at here and one point at here. Okay, so here I get my second point P2, and here I get my second point P2. Okay, now similar, I take three dash as a radius, this radius, three dash radius, center तो हमारा F ही होगा, और कट किससे करना है, थ्री डैश वन, जहां से डिस्टेंस लेते हैं उसी लाइन को कट करना है। ओके, सो I get one arc at here and one arc at here. Okay, so here I just give the name P3, similarly here P3. Okay, चलो वैसे ही फोर डैश सेंटर F, और लाइन कौन सी कट करनी है, फोर डैश वाली का। ओके, सो हियर I get my P4 point, here I get my P4 point। यहाँ तक करो तो भी चलेगा। ओके, लेकिन हमने 5 पॉइंट तक लिया है तो उसे भी कंसीडर करते हैं। टेक 5 डैश एज अ रेडियस। ओके, इसे रेडियस लेना है, एंड सेंटर F, इसी को सेंटर लेना है, एंड कट द आर्क टू दिस लाइन। ओके, 5 डैश वाली लाइन को ही कट करना है। सो हियर आई गेट माय लास्ट 2 पॉइंट P5 एंड P5। ओके, तो ये सारे पॉइंट मुझे मिल गए हैं। ये कर्व सिमेट्रिकल है, जैसा आपको ऊपर कर्व मिलता है वैसा ही नीचे भी मिलेगा। ओके, नाउ जस्ट सिंपली कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। ओके, ये वी पॉइंट भी कर्व का ही पॉइंट है। ओके, इस कर्व पे आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूं तो उसका फोकस से डिस्टेंस और ये डायरेक्ट से स्ट्रेट डिस्टेंस कैसा आएगा, सेम ही आएगा। कितना, सेम, 1 आएगा। इसकी सेंट्रिसिटी कितनी है, 1 है, इसलिए ये डिस्टेंस कोई भी पॉइंट में यहाँ P2 का मेजर करूं, P2 से लेके F और P2 से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ओके,
तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, सेम ही आएगी. ओके, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराबोला कर्व. ओके, सो इन दिस वे आई जस्ट ड्रॉ द पैराबोला कर्व. Okay, now in the question given that draw the normal and tangent at any point. Okay, यहाँ पे किसी भी कहीं पे भी हमें normal और tangent draw करना है. Okay, so for that I am just take one point. Okay, I am taking one point at here. Okay, यहाँ पे जो P1 है, P1 और P2 के बीच में मैं एक point लेता हूँ. Okay, और उसे नाम दे देता हूँ A. यहाँ पे मैंने एक point लिया है, I give the name A. ए पॉइंट लिया है यहाँ पे. ओके, P1 और P2 के बीच में. नाउ स्टेप्स आर वेरी सिंपल. आई एम जस्ट कनेक्ट ए पॉइंट विथ एफ पॉइंट. ए को किसके साथ कनेक्ट करना है, फोकस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है. ओके, नाउ ये लाइन ए एफ है. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन टू दिस ए एफ लाइन. ये ए एफ लाइन है, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे. ओके, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेट स्क्वायर का. सिंपल यहाँ पे आपका सेट स्क्वायर रख दो और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो. ओके, ये लाइन, ये डायरेक्ट इसको टच हो वहां तक मुझे लाइन को एक्सटेंड करना है. ओके, ये एएफ लाइन थी, उसको परपेंडिकुलर 90 एंगल पे है. ओके, नाउ दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट एट हियर टू द डायरेक्ट्रिक्स. ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है. इसको मैं क्या नाम देता हूँ, T. Okay, now I just simply draw one line which pass from this point T and this point A. T और A पॉइंट में से पास हो वैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके, तो ये लाइन क्या हो जाएगी मेरी, टेंजेंट. ओके, T T, ये लाइन क्या हो गई मेरी, टेंजेंट हो गई. ओके, और उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं. तो ये लाइन क्या हो जाएगी मेरी, नॉर्मल. एन एन. ओके, स्टेप समझ में आ गए क्या करना है. ओके, सिंपल. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए लिया है कि जिसमें से मुझे नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है. ए पॉइंट यहाँ पे, फिर उसको फोकस के साथ कनेक्ट करना है. फिर ये जो लाइन है उसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो डायरेक्ट इसको यहाँ पे कट करती है. वहां पे हम क्या नाम देते हैं, टी नाम देते हैं. ये पॉइंट टी और ए उसमें से पास हो वैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट. और उसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, नॉर्मल. Okay, so in this way we solve the second problem of sheet number 3. Thank you.